It started on January 13. Important चीजें क्या है? सबसे पहले it's UNESCO's largest peaceful religious congregation. Congregation is joining together, assembling of people. सबसे बड़ा है. कितने लोग assemble हुए हैं? 450 million, which is double the size of population of UP. That is 45 crore people have come. 1,60,000 tents have been put up. Prayagraj has been turned to a tent city. Which three rivers join in? Important है सरस्वती, mythical, गंगा और यमुना. सरस्वती is mythical. 3 rivers join होती थी, गंगा, यमुना और सरस्वती. You're talking about 450 million people coming, 45 crore people coming this year. इतने population लोग आए हैं, and it is the largest because it has happened after 12 years बाद कुंभ होता है. 12 into 12 में होता है महाकुंभ. 4 जगह पे होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक. याद रखना, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक. कौन से है? सन, जुपिटर विद अर्थ. ये देखते हैं, 2 प्लैनेट्स, एक जुपिटर देखते हैं, अर्थ देखते हैं, और क्या देखते हैं? सन. अर्थ कुंभ क्या होता है? एवरी 6 years. कहाँ पे होता है? हरिद्वार और प्रयागराज. पूर्ण कुंभ ऑल 4 places. और महाकुंभ इज आफ्टर 12 पूर्ण कुंभ. इट इज डन इन 144. Why do we celebrate it? It's supposedly said अमृत गिरा था इन 4 जगह पे when the demons and the gods were fighting. So 4 जगह पे वो गिरा था. वो इंद्र ने लेके भाग गए थे. पहले तो गरुड़ was the one who could not be defeated. So Indra said, okay, what do you want? He said, listen, I need to do it so that my mother no longer becomes a slave. So जो वो 4 drops थे, वो किसको बेसिकली वो देना चाहते थे अमृत? किसने बोला था? जो 100 सांप है, नहीं, सांप, जो सांप की मदर थी. So there were 2 mothers जिनका ये स्टोरी है. That's how the entire story comes into place. Just to think, that's how the story comes into place. स्टार्ट किसने किया था? 8th century में आदि शंकराचार्य. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य. ये हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री में, जब हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट में, तब हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे. अभी क्या बोला गया कि एंट्री किसकी बैन कर देनी चाहिए? नॉन हिंदूज एंड पीपल हु डू नॉट बिलीव them. Is it clear or not? That is it. महात्मा गांधी विजिटेड महाकुंभ. बैन बोला गया कि मत आओ, कि अगर जब तक तुम्हें बिलीव नहीं करते सनातन धर्म में, मत आओ. महात्मा गांधी ने कब विजिट किया था? 1918. यहाँ से 2 मूवमेंट स्टार्ट हुई हैं, विश्व हिंदू परिषद की मूवमेंट और राम टेम्पल की मूवमेंट. 7,500 crores have been devoted for logistics to host millions. 13,000 trains have started to Prayagraj. Airports में एक्स्ट्रा वो कर दिया है. 4,000 hectares and divided into 25 sectors and 12 ghats for bathing. That's very important. किसने स्टार्ट किया था? शंकराचार्य. और इसी से आपके 13 अखाड़ास बने. What are the akhadas? Akhadas are basically जो saints sect को use करते हैं. और each akhada is associated with one weapon. It could be a trident, sword, lancet जो आगे लेके चलते हैं. So that is what they did. The latest in the line of akhadas is the Kinnar Akhada, established in 2015. Latest akhada कौन सा है? Kinnar Akhada. By transgender right activist Lakshmi Narayan Tripathi. ये याद रखना, लेटेस्ट कौन सा अखाड़ा बना है? किन्नर अखाड़ा. कितने हैं अभी? 13 अखाड़ास हैं. The akhadas use this as an opportunity to elect their chiefs, and it's also called Dharam Sansad, जहाँ पे ये होता है. Is it clear or not? 1,60,000 tents were put. 15 to 20 lakh कल्पवासीज devotees are. इसमें रहने का खर्चा नहीं है. जो लग्जरी टेंट्स है उनका कॉस्ट है 50,000 to 1 lakh per night. गवर्नमेंट इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं. एंड रहने का यहाँ पे कल्पवासीज के लिए किसी के लिए खर्चा नहीं है. खर्चा इज बेसिकली फॉर द फूड. दैट इज गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव. डोमिनोज लगे हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, डोमिनोज के, पिज्जा हट के स्टॉल्स लगे हुए हैं, सब स्टॉल्स लगे, सीसीडी लगे हुए हैं स्टॉल्स. अगर आपको लगता है सिर्फ वो है कि नो, all this because Americans are coming. Recently this guy whose wife came, Bill Gates, no, this guy, Apple founder, his wife came. Jeff Bezos नहीं, Steve Jobs wife had come through. So they had also come through. 1,50,000 toilets, and this is the cost of basically. और इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स. जस्ट याद करने का तो क्या तरीका है? कहाँ पे 4 जगह पे होता है? जल्दी से ये पूछा जाएगा.
हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। महाकुंभ क्या होता है? 12 × 12, 12 बार, 12 साल बाद कुंभ होता है, 6 साल बाद आदि कुंभ होता है। आदि कुंभ सिर्फ 2 जगह पे होता है, कौन सा? हरिद्वार है, प्रयागराज। बाकी कुंभ इज इन ऑल 4 प्लेसेस। सेकेंड जो मैं आपको बता रहा था, स्वामिता स्कीम, तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक कार्ड है जिसके अंदर आपका प्रॉपर्टी, जो रूरल प्रॉपर्टी है, वो क्या की जाती है, रिकग्नाइज की जाती है। व्हाट इज रिकग्नाइज? द रूरल प्रॉपर्टी इज रिकग्नाइज। इज इट क्लियर और नॉट? तो जितना भी आपका रूरल प्रॉपर्टी है उसको रिकग्नाइज किया जाता है। इससे फायदा क्या होता है? 50,000 विलेजेस अक्रॉस 12 स्टेट्स एंड 65 लाख प्रॉपर्टी का। अब आपके पास प्रॉपर्टी होगी तो आप लोन ले सकते हो, आप प्रॉपर्टी बेच सकते हो, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। इससे क्या है कि 1 लाख, यू आर टॉकिंग अबाउट 100 लाख करोड़ जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, अब वो स्टार्ट हो सकती है। जैसे हम विलेजेस में खरीदते नहीं थे बिकॉज प्रॉपर्टी का वो नहीं होता, आधार नहीं होता। अभी क्या है कि इसके अंदर एक प्रॉपर कार्ड बन गया जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी राइट्स निकाले जाए, तो हर एक प्रॉपर्टी का कुछ तो रेट होता है, तो वो अब बिकेगा, खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा, ये सब किस में आ जाएगा? कैश साइकिल में। अगर ये कैश साइकिल में आएगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इट विल ऑल्सो लीड टू अ बूस्ट इन द इकोनॉमी। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज द केस ऑफ इट। कई जगह पे नहीं है, कई जगह पे जैसे ट्राइबल्स का, स्पेशली ट्राइबल्स, SC STs में, जैसे कईयों के वो है घर है, दे आर नॉट प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड। तो ये प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होंगे। आप बेसिकली जब आप प्रॉपर्टी राइट इतने लोगों को दे रहे हो, 65 लाख लोगों को राइट दे रहे हो, 2 करोड़ प्लस लोग हैं, उनको प्रॉपर्टी का प्रॉपर राइट दोगे कि आपकी प्रॉपर्टी है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लेकिन सेल इट बाय। सेल बाय में क्या होता है? वो आ रही है जो फिर केसेस में फंसी हुई है, जो केसेस में है, जिसका कोई वो नहीं है, आधार नहीं था, किस नहीं था, ये वाला है। What is the name of the card? Swamita, survey of villages and mapping with improvised technology in village areas. He stressed that rural digitalization will now further rural employment by in leveraging the power of technology and good governance. Samhita scheme was launched in 2020 to provide record of rights. The family zoning houses in inhabited areas in villages by surveying through a latest drone technology. जो आपके inhabited है, पहाड़ों पे है, कुछ है, घर बने हुए हैं, पर उसका कोई राइट वैसे, बिकॉज उस टाइम पे मैपिंग नहीं हुई, अब मैपिंग कर दी है। सो व्हाट इज दिस स्कीम? स्वामिता। इससे क्या होगा? 2.25 करोड़ को देना है, अभी 65 लाख को प्रॉपर्टी कार्ड है। वो सैटेलाइट से यही है स्वामिता के तहत, ड्रोनिंग, ड्रोन्स के थ्रू दे आर लैंड मैपिंग कर रहे हैं। अब हर चीज लैंड मैपिंग, आपका कोई भी विलेज का भी, अब तो यहाँ पे तो सब जगह पे लैंड रिकॉर्ड्स। अब आपने देखा लैंड रिकॉर्ड्स का, जब इसको क्या बोलते हैं हम पंजाबी में, जमाबंदी। आपके व्हाट डू यू कॉल, उधर भी जमाबंदी बोलते हैं जब, कि पिलर कहाँ पे होने चाहिए। अब बिकॉज वो GPS इनेबल्ड है आप, और मैं एक जनरल चीज बोलूंगा, जब एग्रीकल्चर करते हो ना, तो हर एक एग्रीकल्चरिस्ट क्या करते हैं, एक टक आगे मार देता है, तो वो करते करते जमीन इधर से उधर हो जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती, बढ़ती तो किसी की नहीं है। अगर इधर से, हाँ ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब वो लैंड मैपिंग करते हैं तो ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज इतने सालों से हो रही है, करते 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 करते, बिकॉज एक टक यहाँ पे लग गया तो दूसरे का भी टक उस साइड को आगे लगेगा, ऐसे करते हुए जमीन, ये नहीं है कि मैपिंग कहीं और चली गई है। जो रिकॉर्ड्स थे, आई गॉट इट डन रिसेंटली, तो हमारी कुछ किसी और के खेत में, किसी और की हमारे खेत में, ऐसा हो गया था, बिकॉज वो अब कितने सालों से चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 100 years प्लस, करते हुए टक कर करते करते हुए वो चीज है, तो इन्होंने अब क्या किया, मैपिंग कर दी, सब ड्रोन बेस्ड हो गया, और इसको कोई मना नहीं कर सकता। जमीन उतनी है, और पिंड वालों को लगता है कि जमीन ज्यादा हो जाएगी ना, अब वो चीज खत्म होगी। सो अब जो जहां पे जिसके जमीन है वो वहां पे रहता है, चाहे वो अब इस बार कर लो, बाद में करो, करना तो पड़ेगा ही। इसे क्लियर और नॉट? इसका फायदा क्या है गवर्नमेंट को? इसे गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा? अगर देखो लोन्स आएंगे, रेवेन्यू आएगा, जब आप बेचोगे प्रॉपर्टी तो किस पे बेचोगे? कलेक्टर रेट मिलेगा, इससे रेवेन्यू भी मिलेगा गवर्नमेंट को। दैट इज द पर्पस ऑफ इट। इसे क्लियर? और रेवेन्यू, प्रॉपर्टी तो बेचेगा तो कोई खरीदेगा, वो रजिस्टर रेट तो पे करेगा, डिस्प्यूट कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्कीम है? स्वामिता। गवर्नमेंट लॉन्चेस ऐप टू प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस ऐप का नाम क्या है? भारत रणभूमि दर्शन। जितने भी आपके, हाँ, ऐप लॉन्च किया कि आप वहां पे जा सकते हो, पूरे फ्रंट एरिया में नहीं जा सकते, बट जहां जहां पे हुआ है, जैसे 62, 71, 99 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, सियाचिन बेस कैंप में जा सकते हो। उसके ऊपर तो ऑफ कोर्स इट इज डेंजरस। क्यों? ऑक्सीजन बहुत कम है।
So that is what you do. This Galwan clash of 2020 took place. The Indian Army is transforming borders, areas, and historic battlefields into tourist destination, offering citizens a chance to witness the valor up close. Is it clear? 62 war में गया था लद्दाख का रिजलंगा, Arunachal में Kibitu and Bumla Pass. Pangangso in Ladakh and the site of Galwan Cache will be opened up to tourists. So ये tourist को open किया है. नाम क्या आपका? भारत रणभूमि. रणभूमि means लड़ाई. रणभूमि दर्शन. ये बहुत important है. Who is visiting on the 26th Republic Day? Indonesian president. He is visiting on the Republic Day. Now the first contingent march कभी इंडिया में Republic Day किसी foreign army का हुआ. कौन सी army थी वो? इंडिया में फॉरेन आर्मी का मार्च हुआ था. कौन सी कंट्री? 2016 में हुआ था, फ्रांस. अब सेम एक कंटिंजेंट आएगी इंडोनेशियन आर्मी की जो परफॉर्म करेगी रिपब्लिक डे पे. दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. यस. प्रभाव सुबियांतो will visit India, chief guest for the Republic Day parade. He's the fourth, and it's the fourth time an Indonesian president is coming. Is it clear? The first was in 1950. इसमें क्या ब्रह्मोस को हम बेच रहे हैं. सबसे पहले ब्रह्मोस किस कंट्री को बेचा? फिलीपींस. फिर yes to no we are also selling weapons. No, हम देखो फ्रांस को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि फ्रांस से हम बहुत लेते हैं जेट्स वगैरह. यस. अभी सेकंड. फर्स्ट कौन सा है आपके पास? किसको बेचा था? फिलीपींस. सेकंड किसको बेचा है? ब्रह्मोस को बेचा है. 450 million की डील है where we are selling this. Plus, we are also selling Akash Air Defense and Dhruv Light Advanced Helicopters. Dhruv का भी recently क्या है? Grounded है. Lucky they are not flying because इसमें अभी crash हुआ था. तो Coast Guard वाला. तो तब ये नहीं तो ये इन्होंने they will also not perform in the Republic Day parade. अभी इस बार. Is it clear? Okay. So 352 member. इस बार तेजस भी नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? सिंगल जेट इंजन के वालों को परफॉर्म करने के बना किया हुआ है. लास्ट परफॉर्म करेगा रफेल. सारे बाहर के, हमारे खुद के नहीं परफॉर्म कर रहे कोई भी. सारे बाहर के. बिकॉज डुअल जेट्स आर अलाउड, नॉट सिंगल जेट. ये प्रोटोकॉल बनाया जागवर भी है. तो ये सब डुअल है. कोई भी इंडियन परफॉर्म नहीं करेगा इंडियन जेट. ओके. इज इट क्लियर? ये भी है. ट्राई सर्विस टैब्लो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल आर्मी नेवी एयरफोर्स का लोग होता है. ट्राई सर्विस टैब्लो में आएगा. कौन नहीं करेगा? ध्रुव. इज इट क्लियर? बिकॉज इट विल बी ग्राउंडेड. सेकेंडली 44 एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स विल बी पार्ट. 22 फाइटर्स, 11 ट्रांसपोर्ट. नो सिंगल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर विल बी फ्लॉन. प्रोटोकॉल बना दे. अगर बाई चांस फेलियर हो जाए तो सेकेंड इंजन चल पड़ता है. इस करके क्या किया कि प्रोटोकॉल बना दिया कि दोनों जिनके डुअल इंजन है कोई भी इंडिया नहीं चलेगा. एलसीए तेजस्वी नहीं परफॉर्म करेगा. कोई नहीं. अभी इन्होंने प्रोटोकॉल बना दिया. जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कभी रैली में सिंगल इंजन नहीं यूज कर सकता. पता है? देखो कोई भी नो फॉर एयरक्राफ्ट. बहुत बड़ी वो हो गई थी कंट्रोवर्सी इन गुजरात साबरमती में व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी यूज्ड दैट जो प्लेन वाला. नो, प्राइम मिनिस्टर मोदी यूज्ड द सिंगल जेट जो वो सी वाला है. अरे हाँ, वो सी वाला प्लेन यूज किया था. सो उन्होंने प्रोटोकॉल पे बहुत बड़ा बोल दिया था कि सिंगल जेट नहीं. फॉर अ प्राइम मिनिस्टर कभी भी सिंगल जेट नहीं यूज कर सकते, सिंगल इंजन वाला. तो सेम चीज यहाँ पे है कि बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल बना दिया कि नहीं. अब प्रोटोकॉल बनाना स्टार्ट कर दिया कि बाई चांस कुछ हो जाए, इट डजंट गिव अ राइट इंप्रेशन. तो सिंगल की जगह they using similarly is because Prime Minister Modi had come there अभी recently. जब वही मैं बताता रहा हूँ, वो वाटर वाला यूज किया था, उसमें सिंगल होता है फ्रंट वाला. बहुत इशू आ गया था कि नहीं हाउ डिड ही डू इट. ये वो पावर बाई चांस खराब हो जाए सेकंड तो चलता है ना. दैट इज वेयर यू कैन एंड यू आर टॉकिंग विद टॉप डिग्नेटरीज, नॉट अलाउड. तो इस करके इन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिया. इंडियन एयरफोर्स विल परफॉर्म 10 डिफरेंट बेसेस. सबसे लास्ट में कौन आएगा? वर्टिकल चार्ली मैनूवर कौन परफॉर्म करेगा? रफेल.